Hello students, good morning. I am Mansoori Farheen and I will take your biology portion in your science. So there are 6 chapters of biology in your science textbook. So I will take this 6 chapter. So today we starting our chapter number 1, nutrition in plants. In class 6, you learned that food is essential for all living organisms. We all take food. We got energy from it. You also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food. Which are the components of foods? Carbohydrate, protein, fats, vitamins and minerals. So these components of food are called nutrients. So definition of nutrients: carbohydrate, protein, fats, vitamins, minerals are component of food. These are very essential for our body and these are called nutrition. All living organisms require food. Plant can make food for themselves, but animal including human cannot. You know that plants make food, but humans and animals depend on plants and other animals, but they cannot make food. I mean to say raw food. We can make cooking, but we can't make raw food like wheat, rice. We can't. We make rice with raw rice. We can make pulao with raw rice. We can make biryani with raw rice. We can make chapati with wheat. So this is the difference between plants and animals. These humans and animals are directly or indirectly depends on plant. So humans and animals are directly or indirectly depends on plants. For what? For food. Because food are essential for all living organisms. You know that. Buzo wants to know how plants prepare their own food. Buzo को एक सवाल आता है, how plants prepare their own food. So plants perform photosynthesis for making their own food. प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन लेता है उसके 2 मोड्स है. मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स आर 2. फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक एंड द अदर वन इज हेटेरोट्रॉपिक्स. Plants are the only organism that can prepare food for themselves by using वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. इसका यूज करके वो अपना जो फूड है वो खुद से बनाते हैं. द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग. ये जो रॉ मटेरियल्स है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, वो उनके सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं. द न्यूट्रिशंस enable living organisms to build their bodies to grow. Nutritions क्यों चाहिए होता है? हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए हमें न्यूट्रिशन चाहिए. To repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life process. जो हमारी बॉडी में लाइफ प्रोसेसेस होती है, जो हमें आगे इसी स्टैंडर्ड में पढ़ने को आएगी, मैं आपको बोलूँगी तब.
कि ये सारे लाइफ प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन है ना, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीजन, तो ये सारे लाइफ प्रोसेस है। तो ये लाइफ प्रोसेस करने के लिए हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो ये जो एनर्जी है वो फूड के थ्रू हमें मिलेगी। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन, व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड। फूड को हम लेते हैं और इज यूटिलाइज बाय द बॉडी, और बॉडी के द्वारा उसका यूज होता है, तो इसको बोलेंगे हम न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक यानी कि खुद से जो अपना फूड बनाते हैं उसको बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक्स, यानी कि जो प्लांट्स है वो कैसे है? ऑटोट्रॉपिक्स है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हम बोलेंगे, और जो प्लांट्स है उसको हम बोलेंगे ऑटोट्रॉप्स, है ना। तो वैसे ही जो एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स, जो हम ह्यूमंस हैं, एनिमल्स है एंड अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट। प्लांट जो फूड प्रिपेयर करता है हम उस पर डिपेंडेंट होता है, तो उसको हम बोलेंगे हेटेरोट्रॉप्स। मतलब हम लोग जो हैं वो हेटेरोट्रॉप्स हैं कि उनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो जो हमारा न्यूट्रिशन का मोड है उसको हम बोलेंगे हेटेरोट्रॉपिक्स, है ना। चलिए, नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। Whether food is made in all parts of a plant or only in certain plant. How do plants obtain the raw materials from the surrounding? How do they transport them to the food factories of plants? So there are 4 questions given you. I give you answer. जो plants में food कहाँ पर बनता है? फूड फैक्ट्री किसको बोलते हैं? तो लीफ को बोलते हैं। प्लांट में जो लीफ होता है वो फूड प्रिपरेशन करता है, तो उसको हम बोलेंगे फूड फैक्ट्री। किस पार्ट में प्लांट ये जो फूड है वो बनता है? लीफ में बनता है। हाउ डू प्लांट ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग। तो प्लांट्स को कौन से रॉ मटेरियल्स चाहिए, जो हमने आगे बोले है ना कि प्लांट को चाहिए वाटर। तो वाटर कहाँ से मिलेगा? तो रेन के थ्रू भी मिलेगा, और कैसे मिलेगा? तो जो रूट है वो रूट डीप में होते हैं सॉइल में, तो वहाँ से वो वाटर कलेक्ट करेगा और उसका ट्रांसपोर्ट करेगा टू ऑल ओवर द प्लांट बॉडी, ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। देन कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड वो एयर में से लेगा, है ना, रेस्पिरेशन के थ्रू। देन मिनरल्स कहाँ से मिलेंगे? तो हम जो फर्टिलाइज़र या फिर मैन्योर हम सॉइल में डालेंगे तो वहाँ से वो मिनरल्स कलेक्ट करेगा रूट के थ्रू। तो ये सारे जो रॉ मटेरियल्स हैं वो प्लांट्स को अपने सराउंडिंग में से मिल जाते हैं, लाइक सॉइल एंड एयर। सो वी मूव ऑन द आवर फर्स्ट 1.2 टॉपिक, फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? तो जो फूड मेकिंग प्रोसेस है जो प्लांट में होती है उसको हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। तो कैसे होती है? तो जो प्लांट में लीफ होते हैं वो क्लोरोफिल उसमें होता है। आप प्लांट में जो लीव्स होते हैं उनका जो कलर आप देखोगे, लीफ का कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर के लीव्स होते हैं, है ना। तो ये जो ग्रीन कलर है वो किसकी वजह से है? तो ये जो ग्रीन कलर है वो क्लोरोफिल की वजह से है। और क्लोरोफिल क्या करता है? तो क्लोरोफिल सनलाइट को कैप्चर करने में हेल्प करता है। मतलब सनलाइट को वो उसके अंदर खींचता है ना, क्योंकि सनलाइट इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है फोटोसिंथेसिस में। तो क्लोरोफिल हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट, है ना। सनलाइट से एनर्जी कैप्चर करने में वो हेल्प करता है। चलिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इनकी प्रेजेंस में ये प्रोसेस होगी। और किनकी ज़रूरत है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की ज़रूरत है। और किनकी प्रेजेंस है इसमें? सनलाइट और क्लोरोफिल की। और हमें रिजल्ट में क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन।
कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि जो फूड बनाता है प्लांट्स वो, एंड प्लांट्स गिव्स अस ऑक्सीजन, यू स्टडीड इन स्टैंडर्ड 6, है ना। तो ये जो इक्वेशन है वो फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशंस है। ये जो इक्वेशन मोस्ट टाइम पे 2 मार्क्स में आती है। चलिए अब सन के बारे में देखते हैं कि अगर सन ना हो तो क्या होगा। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो सनलाइट अगर नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी, ये प्रोसेस नहीं होगी तो हमें कुछ खाना, मतलब कि जो प्लांट्स है वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बना पाएंगे, यानी कि हमें कुछ भी फूड नहीं मिल पाएगा प्लांट्स के थ्रू, है ना। तो ये जो फूड है वो हमारे लाइफ के लिए बहुत ही एसेंशियल है और वो हमें नहीं मिलेगा तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। यानी कि जो सन है इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो मैंने अभी बताया कि हम जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसके बिना रह नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें फूड नहीं मिलेगा और फूड हमारे लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। चलिए तो केमिकल इक्वेशन हमने देख ली है। चलिए अब हमें एक फिगर बताइए, फिगर नंबर 1.2 इन पेज नंबर 3। तो ये जो प्लांट्स होते हैं उसमें जो लीफ, आपको लीफ की ये जो फिगर है, डायग्राम है दिखाया गया है, उसको जूम करके दिखाया है कि ये स्टोमा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्टोमा। कि जो लीफ होता है उसके ऊपर स्मॉल स्मॉल हॉल्स आए हुए होते हैं और जो हॉल्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, तो ये जो हॉल्स है वो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उसको मतलब आने जाने का काम, जो भी गैसेस है उसका आने जाने का काम किस कहाँ से होता है, तो स्टोमा में से होता है। मतलब स्टोमा वो गैसेस की एंट्री है और एग्जिट भी है ना। चलिए तो अब आपको पेज नंबर 2 पर सेल्स के बारे में कुछ बताया कि सेल्स क्या है। तो हमारी जो बॉडी है, जैसे कि एक बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग बनाने में ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे ही हमारी बॉडी बनी है तो वो सेल्स से बनी है। छोटे छोटे सेल्स जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, हमारी बॉडी इसी सेल से बनी हुई है। तो इस सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है आप डायग्राम में देख सकते हो 1.1 कि जो राउंड राउंड आपको दिखाया गया हुआ है। तो ये जो अंदर का जो राउंड पार्ट आप देख रहे हो है न्यूक्लियस। क्या है वो? न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है वो सभी जो सेल्स में जो प्रोसेसेस होती है उसका कंट्रोलर का काम कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। देन आप न्यूक्लियस के अराउंड कुछ लिक्विड जेली टाइप स्ट्रक्चर देख सकते हो, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। एंड देन साइटोप्लाज्म के अराउंड वन मेम्ब्रेन टाइप स्ट्रक्चर है, उसको आप बोलोगे सेल मेम्ब्रेन। क्या है वो? सेल मेम्ब्रेन, है ना। तो ये जो चैप्टर है सेल का पूरा आपको स्टैंडर्ड 8 में आएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए अब जो एक्टिविटीज़ आपको दी गई हुई है इस चैप्टर में, और जो मैं 6 चैप्टर लेने वाली हूँ बायोलॉजी के, तो वो सारी एक्टिविटीज़ हम क्लासरूम में ज़रूर परफॉर्म करेंगे, है ना। तो अभी ये हम सारी एक्टिविटीज़ स्किप कर रहे हैं, हम क्लासरूम में सभी एक्टिविटीज़ करेंगे। चलिए अब हमें एक क्वेश्चन आएगा कि टीचर अगर जो ये क्लोरोफिल है जो लीव्स को ग्रीन कलर देता है, तो कुछ लीव्स तो ऐसे होते हैं कि उसका कलर ग्रीन नहीं होता, लाइक येलो होते हैं, फिर मरून कलर के होते हैं, कॉफ़ी कलर के होते हैं। तो वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेंगे या नहीं करेंगे? तो अलग अलग कलर के क्लोरोफिल होते हैं ना, तो उसमें भी क्लोरोफिल होंगे और वो भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेगा। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं करते हैं और वो अदर प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं, तो उसके बारे में भी हम आगे देखते हैं ना। चलिए अब हम देखते हैं सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसके अलावा प्लांट जो है वो क्या क्या बनाता है, उसके अंदर कौन से ऐसे न्यूट्रिशन
होते हैं। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो आपने अभी जस्ट पढ़ा कि जो प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यू हैव टू अंडरलाइन इट। These are used to synthesis other components of food such as proteins and fats, है ना। तो वो जो है वो अदर कंपोनेंट्स भी बनाते हैं लाइक प्रोटीन्स एंड फैट्स, बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजिनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। प्रोटीन किसका बना हुआ होता है? तो नाइट्रोजन का बना हुआ होता है, मतलब वो नाइट्रोजिनस कंपाउंड है, सब्सटेंस है। तो फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। अब जो प्लांट्स है वो कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा प्रोटीन एंड फैट्स भी बनाता है। जो प्रोटीन है वो नाइट्रोजिनस सब्सटेंस है, यानी कि जो प्रोटीन है उसमें नाइट्रोजन है। तो अब क्वेश्चन होगा कि टीचर ये जो प्लांट्स है वो नाइट्रोजन कहाँ से लेते होंगे? तो जो प्लांट्स है वो एयर में से नाइट्रोजन नहीं लेते, क्योंकि एयर में जो नाइट्रोजन होता है वो प्लांट डायरेक्टली नहीं ले पाते हैं, है ना। तो वो क्या करता है कि जो सॉइल में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ऐसे सारे बैक्टीरियाज हैं, वो क्या करते हैं कि जो एयर में नाइट्रोजन है उसको एक अलग कंपाउंड में टर्न करेंगे, है ना, एंड देन फिक्स इन द सॉइल, एंड वो सॉइल में उसको फिक्स करते हैं। देन द रूट कैन टेक दिस नाइट्रोजन and utilize by its body and make proteins। चलिए 1.3 अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। चलिए हमने अभी ये ऑटोट्रॉफिक्स देखा है ना, कि जो प्लांट्स होते हैं वो उसको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, क्योंकि उसमें जो न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉफिक टाइप का होता है। बट प्लांट में अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन भी होते हैं। तो कौन से ऐसे होते हैं? तो चलिए हम देखते हैं। तो फर्स्ट है हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स, देन इंसेक्टिवरस प्लांट्स एंड देन सेप्रोट्रॉपिक प्लांट्स। तो इसके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। तो ये लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में और कंटिन्यू करते हैं हमारे चैप्टर को। थैंक यू।